Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Along with Manoj Pathak, I am Sarabjit Kaur. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं सरबजीत कौर। SEBI eases rules for duplicate securities, raises simplified documentation limit to 10 lakh rupees, also revises basic services demat account rules. India, to soon become self-reliant in semiconductors, will also begin exporting globally, says Union Minister Amit Shah. And Indian stock markets remain closed on account of Christmas today. सेबी ने डुप्लीकेट सिक्योरिटीज नियमों को आसान किया, सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन लिमिट को 10 लाख रुपए तक बढ़ाया, बुनियादी सेवा डीमेट अकाउंट नियमों को भी किया संशोधित। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत जल्दी ही सेमीकंडक्टर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा और दुनिया को सेमीकंडक्टर का निर्यात भी करेगा। और क्रिसमस के उपलक्ष्य में भारतीय शेयर बाजार आज रहे बंद। May we remind our listeners, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Manoj, let's see what's the first big news of the day. Bilkul. In a move aimed at easing investor compliance and streamlining market processes, capital markets regulator SEBI has announced a set of reforms covering the issuance of duplicate securities and the Basic Services Demat Account BSDA framework. To make the process of issuing duplicate securities faster, more efficient and investor-friendly, SEBI has doubled the monetary threshold for the simplified documentation process to Rs 10 lakh from the earlier Rs 5 lakh. Under the revised norms, investors holding securities valued up to Rs 10 lakh will now be required to submit fewer documents, addressing inconsistencies and reducing procedural hurdles. SEBI has also relaxed Basic Services Demat Account BSDA norms by excluding zero coupon, zero principal ZCZP bonds and delisted securities from the valuation threshold used to determine BSDA eligibility. This step is intended to further enhance the BSDA facility, make investing simpler for investors and reduce the compliance burden for depository participants. For Market Mantra, this is Madhuri Pange from Mumbai. यहाँ पर विशाल जी, एकदम लेमैन श्रोता यानी जिन्हें कह लें कि शेयर बाजार में अभी तक निवेश नहीं किया, यदि उन्हें भी समझना हो तो इन सब जो बदलाव किए हैं सेबी ने, उनका मूल उद्देश्य क्या और किस रूप में ये प्रभावी होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कब से प्रभावी होंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 31 मार्च 2026 से ये जो नए नियम हैं ये प्रभावी होंगे। और आपने कहा कि मूल रूप से खासतौर पे लेमन लैंग्वेज में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो जो बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट है वो उसको खोलने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ शर्तें थी। और ऐसा नहीं है कि ये फैसला पहली बार लिया गया है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। सितंबर 2024 में भी सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके तहत जो होल्डिंग लिमिट है बीएसडी अकाउंट्स की उसको 50,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया था। तो ये एक सीरीज ऑफ सर्कुलर्स कहूंगा मैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स कहूंगा सेबी की तरफ से, और इनका उद्देश्य और मकसद केवल एक ही है, और वो मकसद ये है कि जो नए इन्वेस्टर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो पहली बार बाजार में कदम रख रहे हैं,
शेयर बाजार में कदम रख रहे हैं उसके लिए डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी होगा। और वो जो कंप्लायंस बर्डन है उसको कैसे कम किया जाए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो नया निवेशक आता है जो पहले ही मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड रहता है उन सब आंकड़ों को देख के, और खासतौर पे अगर आप स्टॉक मार्केट का एक पूरे दिन का जो है मतलब जो भी ट्रेडिंग जिस तरह से होती है उसमें जिस तरह से आंकड़े होते हैं, चाहे हम कैंडल मूवमेंट की बात करें, चाहे हम गेनर्स की बात करें, लूजर्स की बात करें, सेक्टर्स की बात करें, तो एक नए इन्वेस्टर के लिए इन सब चीजों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और उसके ऊपर अगर वो डीमैट अकाउंट में अगर कंप्लायंस बर्डन भी रहे, ऐसी शर्तें भी रहें जिनको वो समझ न पा रहा हो, तो कई बार ये उनको निराश भी करता है, कई बार ये उनको हतोत्साहित भी करता है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए पहला तो ये, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो ओवरऑल सिस्टम है अगर आप उसमें कंप्लायंस बर्डन को थोड़ा सा कम करेंगे और जो जरूरी चीजें हैं जी उनको जरूर रखेंगे, लेकिन जो गैर जरूरी चीजें हैं जैसा कि इस फ्रेमवर्क में किया गया है, इस बदलाव में किया गया है, चाहे हम ZP की बात करें या फिर दूसरे जो इससे जुड़े पहलू हैं उनकी बात करें, तो सीधे तौर पर सबका मकसद केवल एक ही है कि निवेशकों को उत्साहित किया जाए, नए निवेशकों को खास तौर पे कंप्लायंस बर्डन को थोड़ा सा कम किया जाए, और जो जरूरी बातें हैं कंप्लायंस से संबंधित उन पर जोर ज्यादा दिया जाए बनिस्बत इसके कि जो कुछ गैर जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है जिनके बगैर भी काम चल सकता है उन पर ज्यादा फोकस ना रहे। Vishal, taking cue from just what you said, you spoke about new investors being overwhelmed. So, is this a step only towards streamlining market processes, or can we see it as a move towards ease of doing business too? Well, of course, this is, I would say, both sides of the same coin, because ultimately, what's an investor doing in the stock market? He's doing a business, he's investing into companies, hoping for making some profit on the investment which he or she is making. And that's what the stock market is entirely about. It has to be an informed decision by looking at all the, aspects of the company or the script he or she wants to invest in. Now that's a business which is happening. So anything which goes ahead and simplifies the procedure related to that particular transaction or that particular business transaction would of course amount to ease of doing business. Largely, yes, it is to sort of encourage more first-time investors or young investors to come in. Not everybody is a full-time stock market investor. People sometimes open a demat account, they invest, and they sit quietly and hold it back, or they would look at it, say perhaps maybe in a week or 10 days. Not everybody comes in and becomes a day trader. So for them, it's really important. That means they have their primary job, they're doing something else as well. Correct. In life also. So perhaps they might miss out on some part of the complex documentation process which had been in place earlier. Now what the SEBI has been doing, as I was saying, starting September 2024 onwards, is easing that compliance burden, ensuring that the necessary documentation still remains in place. All the, necessary regulatory compliances are taken care of, but there is no unnecessary burden on the investor, and the investor is focused upon doing what he or she does best. That's one. And two, of course, make the most of their intellect and their investment in the stock market. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में इस अवसर पर राष्ट्र को समर्पित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कई पहलुओं को याद किया। उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विकास गाथा को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली अनेक योजनाओं की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की। श्री मोदी ने कहा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सहित देश के हर गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का आरंभ वाजपेयी जी ने किया था। कनेक्टिविटी को लेकर अटल जी के विजन ने 21वीं सदी के भारत को शुरुआती मजबूती दी। अटल जी की सरकार के समय ही गांव-गांव तक
सड़कें पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया था। उसी समय स्वर्णिम चतुर्भुज यानी हाईवे के विस्तार पर काम शुरू हुआ था। साल 2000 के बाद से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब तक करीब 8 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनी है और इनमें से करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें पिछले 10-11 साल में बनी है। One of India's most impactful rural infrastructure initiatives, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) marks its 25 years today. Launched on 25th December 2000 to ensure all-weather connectivity to previously unconnected rural habitations, the program has emerged as a key enabler of agricultural growth, employment generation, improved access to education and health services, and poverty alleviation. We have a report. Budgetary allocations to the scheme in recent years reflect the government's sustained emphasis on strengthening rural road connectivity. Around 19,000 crore rupees have been allocated for the financial year 2025-26. Under the Phase 4, a total road length of 62,500 kilometers will be constructed between the financial years 2024-25 and 2028-29, with an overall outlay of more than 70,000 crore rupees. With nearly 96% of the sanctioned rural road length completed, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has significantly enhanced rural accessibility, strengthened market linkages, improved access to education and healthcare, and accelerated inclusive economic growth. Adarsh for Akashvani News, Delhi. यहाँ पर विशाल जी, अब हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और एक दृष्टि संपन्न प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी जी के कार्यकाल को विशेष रूप से ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए, पूरे देश को एक सूत्र में आबद्ध करने के लिए जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का सपना उन्होंने देखा, आज हम साकार होते हुए उसे देख रहे हैं। दिल्ली से कुछ ही घंटों में हम देहरादून चले जा रहे हैं, या कह लें देश के विभिन्न भागों में बहुत कम अवधि में पहुंच रहे हैं। इस यात्रा को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन सुना इसी मुद्दे पर, और उन्होंने उसे सही रूप में समराइज किया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए और उस पर और काम करने के लिए जो शुरुआत की वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। और एक मुद्दे का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और दूसरी बात आपने की, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पहला PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और दूसरा स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। पहले मैं PMGSY पे आता हूं। अब आप थोड़ा सा इतिहास की तरफ नजर डालिए, और मैं श्रोताओं को भी कहूंगा, इस देश के इतिहास में कौन सी ऐसी स्कीम है, और बहुत कम स्कीम्स होंगी, जो कि लगभग 25 साल से चल रही हैं लगातार, उसका फायदा मिल रहा है जनता को और उससे विकास भी हो रहा है और बहुत ही सक्सेसफुली चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्कीम्स केवल एक सरकार नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, बल्कि 6ठी सरकार में भी वो स्कीम सक्सेसफुली चल रही है। यानी कि लगातार 6 सरकारों ने उस स्कीम को इतना महत्वपूर्ण समझा कि उस पर उतना ही फोकस रखा जितना उस स्कीम को शुरू करने वाली सरकार ने रखा। और इसका एक छोटा सा नमूना तथ्यों में भी है। यानी कि इस स्कीम का, PMGSY का जो चौथा फेज है, अगर उसके आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी भी यानी कि 2024 से 2029 के बीच 5 साल में PMGSY फेज 4 के लिए जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है लगभग 25,000 और जो रूरल हैबिटेशंस हैं यानी कि ग्रामीण रिहायशी इलाके हैं उनको अभी और जोड़ना है, और लगभग 60,000 किलोमीटर की सड़क बननी है उसमें। तो यानी कि परत दर परत वो खुलती चली जा रही है। PMGSY के जो फायदे हैं वो आप पहले मैदानी इलाकों से शुरू हुआ, अब ये इसका फायदा पहाड़ी इलाकों तक में मिल रहा है। वो गांव जहां पर पगडंडियां भी नहीं थी वहां पर अब सड़कें जा रही हैं। तो यानी कि लोगों को फायदा हो रहा है। दूसरा पहलू जिसका जिक्र आपने किया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, और वो फलीभूत होते हुए अब हम देख रहे हैं उसके विभिन्न रूपों में। यानी कि अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अलावा अब नेशनल एक्सप्रेसवे पे जोर
है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें वो चल रहा है। दिल्ली से लेकर अलग अलग इलाकों पर, चाहे दिल्ली मेरठ की बात करें या दिल्ली देहरादून की आपने बात की, उसके अलावा दिल्ली से लेके जम्मू तक एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। दिल्ली के चारों तरफ जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, सड़कों का अलग अलग तरीके से जाल बिछ रहा है। और केवल दिल्ली की बात नहीं है, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में भी बाकी जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं उनके बीच में जो जोड़ने के लिए या रिंग रोड बनाने के लिए या बड़े हाईवेज बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जोर शोर से काम चल रहा है। और ये केवल हाईवेज तक सीमित नहीं है, फिर ये मसला चला दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, यानी कि मेट्रो की तरफ अग्रसर हुआ। और मेट्रो की शुरुआत भी तभी हुई थी, उसी कार्यकाल में हुई थी, और उसको भी हम फलीभूत होते हुए दिख रहे हैं। अब कैबिनेट ने जो अभी फैसला लिया है उसके बाद अगर उसका इंप्लीमेंटेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद केवल दिल्ली राजधानी जो क्षेत्र है, यानी कि जैसे हम दिल्ली एनसीआर कहते हैं, उसमें 400 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क होगा। और केवल दिल्ली ऐसा शहर नहीं है जहां मेट्रो है, लखनऊ में भी मेट्रो बन रही है, आगरा में भी मेट्रो बन रही है, उधर देहरादून और हरिद्वार के बीच भी मेट्रो बनाने की परियोजना पर काम चल रहा है, मुंबई में मेट्रो बन रही है, बेंगलोर में मेट्रो बन। तो ये केवल एक शहर की बात नहीं है, यानी कि ये एक ऐसा मैं कहूंगा कि ऐसा पॉजिटिव पॉलिसी इनपुट है जो कि जिसे आप जितना आगे बढ़ा रहे हैं उतना फायदा जनता को मिल रहा है और सरकार को भी उसके फायदे नजर आते दिख रहे हैं। क्योंकि जब एक रोड इंफ्रा या रेल इंफ्रा या मेट्रो इंफ्रा जब बनती है तो आसपास के इलाकों में जो विकास होना चाहिए, वो जो विकास की गति सरकार चाहती है, वो उसे होती दिख रही है। Vishal, you spoke at length about connectivity. Today, Prime Minister Narendra Modi, while inaugurating the Rashtriya Prerna Sthal, spoke about the vision and dream of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, be it about telecom advancement, digital evolution. What's your take on this? How does India fare into this picture today? Well, it is not just about infra, as I was going on and on just a short while ago, and you rightly pointed it out. It spans to various other sectors as well. Telecom is another. In fact, largely when we look at former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's tenures, he had 3 tenures from 13 days to 5 years as well. But in every tenure, his vision in terms of what needs to be done for the country span not only across the infra sectors but also from the tech point of view, also from the futuristic point of view as well. Let's not forget the nuclear tests which we conducted. What were they? They were intended to go ahead and prove our prowess, India's prowess, to the world community. From there onwards, now we've come to a stage where we are putting up, semiconductor manufacturing plants, and we are even planning to go ahead and export semiconductors. So basically, it was sort of a visionary approach in terms of looking into the future, doing or setting the stage for what might be needed in the 21st century for a country like India with diverse interests, diverse population, and of course diverse needs, and most importantly the capability and the talent to do well in almost every sphere, more importantly in technology. यहाँ पर हम चर्चा को और इसी मुद्दे पर आगे बढ़ाना चाहेंगे विशाल, और समझना चाहेंगे कि एक सदी की चौथाई समयावधि को हमने देखा बुनियादी ढांचे को बदलते हुए। एक सपना हमारे एक प्रधानमंत्री ने देखा जो पूरा होता हमें सड़क पर दिख रहा है। अब यहां से आगे की चुनौतियां क्या, यानी किस दिशा में हैं, जब हम अगले यानी कह लें एक चौथाई सदी यानी 2047 ही हम लेके चल रहे हैं, वहां के लिए हमारी इन्हीं बुनियादी ढांचों में क्या चुनौतियां हैं? देखिए, कभी हम किताबों में पढ़ते थे कि हर दौर के अलग फायदे होते हैं, हर दौर के अलग अलग चुनौतियां होती हैं। फिर उस दौर को परिभाषित करने की जब बात चली तो कभी उस दौर को एक शताब्दी में लिया गया, कभी एक दशक में लिया गया। आपने एक क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी यानी कि एक चौथाई शताब्दी की बात की। मेरा मानना है कि जिस तरह से तकनीक के जो क्षेत्र है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, उसमें जिस तरह से एडवांसमेंट हो रही है, मुझे लगता है कि अब ये दौर घट के 1 साल रह गया है। यानी कि जो विजन है उसे आपको लंबा रखना पड़ेगा, लेकिन आपको बदलावों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप आज जिस गोल को लेकर चल रहे हैं, बदलती तकनीक के चलते हो सकता है कि आज से 1 साल बाद आपको अपना थोड़ा सा गोल पोस्ट शिफ्ट करना पड़े। और मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा पीछे जाइए। जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था, हमने परमाणु
परमाणु टेस्ट किए, परमाणु तकनीक में एक आत्मनिर्भरता हासिल की, और वहां से चल के अभी हम आज जहाँ पहुंचे हैं वहां हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। बीच में हम सॉफ्टवेयर के जो है लीडर माने जाते थे, लेकिन क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम चल सकता है? हमने रियलाइज किया कि नहीं, हार्डवेयर से भी उतना ही गहरा नाता रखना पड़ेगा। तो हम अब सेमीकंडक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर करने की राह पर चले हैं। ऐसे ही आप डिफेंस सेक्टर की तरफ अगर देखें तो चुनौतियां अलग अलग रहेंगी। हमें सबसे पहली बात आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हर क्षेत्र में, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, अपने हितों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो वर्ल्ड इकोनॉमी की जो स्टेज है उसमें सभी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, सभी बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो बड़े देश हैं, वो अपने हितों की रक्षा करने पर ज्यादा इस वक्त फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हम उसमें पीछे नहीं रह सकते। लेकिन हम ना केवल विश्व के लिए एक बड़ा बाजार हैं, बल्कि हमें विश्व को यह भी दिखाना है कि जो चीजें बाकी अर्थव्यवस्थाएं या बाकी देश बेच रहे हैं, बना रहे हैं, वो करने की क्षमता हम में भी है। वो हमने कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में करके दिखाया। उसके अलावा अगर आप हाल फिलहाल के कुछ वर्षों को देखें तो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उस सब में हमने करके दिखाया। हम डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से हमारी प्रगति हो रही है, उसमें लग रहा है कि हमारे कदम बिल्कुल सही दिशा में है। लेकिन अभी भी हम वहां पहुंचे नहीं है जहां हमें पहुंचना चाहिए। यानी कि 2047 का जो सपना है, 100 साल पूरे होने को जो सपना है, जो टारगेट है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा बदलते चुनौतियों के लिए, बदलते गोल पोस्ट के लिए और बदलती टेक्नोलॉजी के लिए। सबसे बड़ी बात, बड़ी अच्छी बात, हमें तैयार रहना होगा। यहां श्रोताओं, आपके लिए भी संदेश कि आप कितने तैयार हैं देश के इस बदलाव में अपना योगदान देने के लिए। यदि हम 25 वर्ष अभी का देखें, 25 वर्ष आगे का देखें, तो फिलहाल हम दुनिया में कई क्षेत्रों में सबसे आगे चल रहे, और अब हमारी धमक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया को देखने को मिलेगी। आइए बढ़ते हैं खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए सेमीकंडक्टर पर ही। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि भारत जल्दी ही न केवल सेमीकंडक्टर उद्योग में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि सेमीकंडक्टर का निर्यात दुनिया को करना भी शुरू कर देगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे नए क्षेत्रों की नींव डाली जा रही है, जिससे इस देश को आने वाले दिनों में नए क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने का मौका मिलेगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है, और देखते देखते सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इसका निर्यात भी करने की शुरुआत कर देंगे। गृह मंत्री ने इस अवसर पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन परियोजनाओं से बड़े स्तर पर रोजगार और आमदनी के अवसर सृजित होंगे। सम्मेलन में उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। Vishal, taking cue from this story, I'm going back to the Prime Minister's inaugural speech in Lucknow this morning, where he spoke about manufacturing of BrahMos in India. He spoke about the defense corridor and self-reliance, increasing self-reliance in the defense sector. What's your take on this? That's a very important aspect in today's world, because we see a lot of conflicts going on around us. Be it in the Middle East, Israel versus Iran, or Russia versus Ukraine, or United States of America taking a very tough stand in the Caribbean against Venezuela and all. What it teaches us is that we will have to be prepared. And we will have to be prepared on our own terms and on our own resources. Yes, we have very good relations with both Russia and United States of America and several European countries in terms of, import of defense equipments, defense agreements, defense partnerships, strategic partnerships as well. But
largely we will have to be reliant upon our own resources, and that is why we see this momentum, and I would call it a momentum because the kind of results which we have seen in the past 3 to 4 years as far as indigenous defense manufacturing is concerned, those are stupendous, and they're not only limited to small arms, as you're mentioning BrahMos. We're also talking about our fighter jets as well, making a splash. They're being in demand. Several other products which we manufacture. The most important aspect is that first, we are fulfilling the needs of our armed forces, and second, we are also, making a splash in the export market. Of course, that will not be taken kindly by the so-called, big players in the game. But let it be. We will need to make our presence felt where we can and where we have the talent and the prowess to do so. And we've shown in the last 3-4 years that as far as defense manufacturing is concerned, including the aerospace as well, we have the prowess, we have the talent, we can make it happen. It's just a matter of perseverance and just a matter of time. यहाँ पर विशाल जी आपने बड़े अच्छे यानी सकारात्मक मोड़ पर उस बिंदु को छोड़ा है, उसे हम थोड़ा और विस्तार से बस बहुत संक्षेप में ही समझना चाहेंगे। आपने इसरो एरोस्पेस की बात की, इसरो की ताजा कामयाबी अंतरिक्ष में हमारे किस भविष्य का इशारा है? इस भविष्य का इशारा है कि आज से 20, 30, 40 साल पहले लोग केवल नासा की बात करते थे या फिर जो रशियन स्पेस एजेंसी है उसकी बात करते थे, और स्पेस में जो दौड़ है या लड़ाई है या कंपटीशन है वो रूस, अमेरिका, चीन, इन सब के बारे में कहा जाता था। और आज जब स्पेस की बात होती है तो उसी सांस में इसरो की भी बात होती है, उसी सांस में भारत का भी नाम लिया जाता है। तो ये दर्शाता है कि हम बहुत आगे निकल गए हैं। हालांकि अभी चांद है, मंगल ग्रह अभी बाकी है। वहां भी हम पहुंचेंगे आने वाले दिनों में। इसी हौसले के साथ बढ़ते हैं शेयर बाजार की ओर। क्रिसमस त्योहार के उपलक्ष्य में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में आज सार्वजनिक अवकाश रहा। इक्विटी सेटलमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज लेन देन, मुद्रा और कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी कारोबार बंद रहा। कल घरेलू शेयर बाजार मामूली घाटे के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली नुकसान में रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 116 अंक घटकर 85,409 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 35 अंक घटकर 26,142 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार भी घाटे के साथ बंद हुए थे। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में नुकसान हुआ था। एशियाई बाजार में चलें तो वहां भी अधिकांश प्रमुख बाजारों में क्रिसमस के अवसर पर छुट्टियां हैं। सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और यूरोप में भी सभी प्रमुख बाजारों में क्रिसमस की छुट्टियां हैं और लोग उत्साह में त्योहार मना रहे हैं। हालांकि चीन और जापान में आज कारोबार हुआ। निवेशकों की खरीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निक्की 225 इंडेक्स में 0.1% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। Major U.S. indices nudged upward yesterday with the Dow Jones Industrial Average and S&P 500 registering record closing highs during a truncated Christmas Eve session. The Dow gained 0.6% to close at 48,731. The S&P 500 advanced over 0.3% to end at 6,932, and Nasdaq Composite Index added over 0.2% to settle at 23,613. Vishal, what's your comment on the present picture of the U.S. market, very, very briefly? Well, very briefly, expectations are that the well-known Santa Claus rally might, play on the positive note for the U.S. market, and in return for the European markets as well. What we see in the last trading session is an indicator of that. But let's wait and watch. यानी हम प्रतीक्षा करें, यही समय का इशारा। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से विशाल हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. SEBI eases rules for duplicate securities, raises simplified documentation limit to 10 lakh rupees, also revises basic services DMAT account rules. India, to soon become self-reliant in semiconductors, will also begin exporting globally, says Union Minister Amit Shah. And Indian stock markets remain closed on account of Christmas today. And that's it in today's edition of Market Mantra. Until tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Mantra.